thank you so much for talking to me. And after the year that we've been lived through, Tandav is exactly what we all need to do because, you know, each one of us has been through, I mean, they say na hell and back. Yeah. So, हम भी वेट कर रहे थे 1.5 साल से, and I think it is coming at the right time. And actually, Tandav is something that we all need right now, literally and figuratively. I so agree with you. But you know, your character, अपने आपको university days, since you are like my Delhi University brethren, कुछ अपने university days की याद आई playing the character that you are, Shivam? हाँ, definitely. मतलब university days तो I lived those days again. It was so beautiful. North Campus. आप कौन से college से हैं? Stephens. Oh, Stephens. हाँ, तो North Campus. So we shot in Arts Fac, we shot in Hansraj, we shot in Kirodimal, my college, and even in our hostel. So that was something magical. मतलब आप actually पूरा वो 3 साल हाँ जहाँ जा रहे थे, I was telling stories to people के अरे सी यहाँ पे हम लोग चाय पिया करते थे, यहाँ पे ये टर्न पे VKRV राव है, यहाँ पे हम मैगी खाने रात को आया करते थे 3 बजे एग्जाम्स टाइम में. So it was actually like reliving those great days of our lives. So that was beautiful. Were you during college active with DUSU and their politics and election and campaigning night? No, not exactly. I would say never. मतलब I was a keen observer, but never actively involved as such. थोड़ा बहुत कभी-कभी कोई दोस्त है उसके बारे में किसी जाके बात कर ली because we were in dramatics, so उतना ही मतलब never actively involved जिसे आप कहते हैं वो नहीं. But वो अक्सर कहते हैं ना student movement जहाँ भी होता है that can bring a revolution and we've seen it down the years. So playing Shivam, anyone you observed, what was your takeaway? How did you get into that character? Did he resonate with you at any level? I think it was resonating at all the levels possible. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं चाहे actively involved नहीं था, but I got interested in society and in politics and economics and everything when I came to my college. तो वहाँ पे ऑब्जर्व तो कर ही रहे थे. ऑब्वियसली वी वर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस तरह के भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, इस तरह के भी स्टूडेंट लीडर्स हैं. ओ इन पार्टीज के आइडियोलॉजीज बेसिकली इस लेवल पे डिफर करती है. ये लोग इस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, पर नहीं इसके अंदर भी करप्शन है. तो क्या है, क्या इट इज ओनली अबाउट द पावर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो आई थिंक आई वाज ऑब्जर्विंग इट वेरी क्लोजली एंड नॉट नोइंगली. मतलब ऐसा नहीं होता था कि हम बाद में बैठ के नोट्स बनाते थे या कुछ, लेकिन ऑब्वियसली आई वाज लिविंग थ्रू दैट. मतलब आप भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि नॉर्थ कैंपस में रहते हुए आप इससे बिल्कुल अनअवेयर निकल जाए. यू आर लिविंग इन दैट. और मैं हॉस्टल में भी था, तो मतलब मैं पाइलॉन था, सॉरी, बट हाँ हॉस्टल में 2 साल रहा. तो I observed everything. So I think it was while playing Shiva, it was kind of a mix of everything. It was not just one person. और तो आपको जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि as an actor it is never about your conscious mind. I don't prefer that. मतलब कुछ लोग उस तरह से काम करते हैं कि conscious mind से कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट करके किसी एक आदमी को रेफरेंस बना के they start preparing their character. I don't work like that until unless I'm doing a biographical character or something like that. Otherwise, it's better that if you are observing things in your real life, then your subconscious will guide you in making the character. So whatever your instinct is, that will be the best thing that you can provide for that character. So I think ये इस तरह से बहुत ज्यादा रिलेट हो रहा था और अपने आप लगता था कि नहीं यार ये सीन इस तरह से नहीं. आई थिंक अगर ये स्पीच हो रही है तो अगर यहाँ पे स्पीच दे रहा होगा तो अलग जगह दे रहा होगा. अपने दोस्तों के साथ अगर स्पीच दे रहा है, मान लीजिए कुछ बात कर रहा है उनसे, अगर अपने राइवल के साथ बात कर रहा होगा तो अलग तरह से कर रहा होगा. जनरल लोगों से अगर बात कर रहा होगा तो अलग तरह से कर रहा होगा. इस तरह के पॉलिटिकल थॉट का अगर आदमी होगा तो वो बाकी लोगों से मे बी जैसे हमारे ढाबे पे कुछ एक सीन है तो वो उनसे कैसे बात करेगा. कि कोई बोला कि यार बड़ा ना रिस्पेक्टफुली शायद बात करेगा. मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक. आई थिंक इट विल बी मोर फ्रेंडली. रिस्पेक्टफुल, उसमें रिस्पेक्ट रहेगी, बट इट शुड बी मोर फ्रेंडली बिकॉज उसको लगता है कि हम साथ के लोग हैं, हम सब लोग मिले हुए लोग हैं.
So I think that is ये सब चीजें आ रही थी, and I was also understanding it more while playing the character. And the good part was कि हमारा जब shoot हुआ तो हमारा part, यूनिवर्सिटी वाला part, almost 80%, 80 to 85%, it was in one chunk. तो हम रोज अपना सुबह उठो, तैयार हो, यूनिवर्सिटी पहुंचो, सारा दिन यूनिवर्सिटी में शूट करो, then come back. So it was like living that life, and I think space was also giving me a lot. I think वो बड़ा important रहता है. सेट पे शायद इतना मजा नहीं आता करके, पर जी. अब रियल जगह पहुंचे हुए हैं, CRL दिख रही है, उसके सामने आप खड़े, it was that was good. I'm sure. And also you are the rare breed of actor who's quite outspoken about his politics. तो आपको लगता है कभी-कभी that it does impact you, because बहुत होता है ना यार, कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ. But you seem to be confident कि मैं इसमें believe करता हूँ, मैं उसमें नहीं believe करता हूँ. But आपको लगता है कभी-कभी impact हो जाता है? होता है, कच्चा पक्का होता है, but I think you gave the answer. I don't care about these things. Awesome. So, I mean, being an actor, activist, how would you define yourself? I'm an actor only. I'm nothing else. I think everybody needs to speak what they think. And as an actor, I think it's more important for me to be true to myself. That is what I can say. तो अगर मुझे कुछ लगता है, I need to understand that, and I need to, वही जो मैंने अभी बात करी, सबकॉन्शियस मुझे तभी प्रोवाइड करेगा जब मैं उसको अलाउ करूंगा हर बार कि आप यू कैन टेक ओवर फॉर सम टाइम. अगर मैं उसको रोकना, कर्व करना शुरू कर दूंगा, तो आफ्टर अ पॉइंट इट विल स्लीप, और फिर सब कुछ सिर्फ यहाँ से ही करना पड़ेगा. सो फॉर अ पर्सन लाइक मी, इट इज मोर लाइक just going with the flow and just being myself. And one thing that I really like about you, Zishan, is following your career graph. You've been part of some big films, but you came to a point where you wanted to quit acting because creatively and monetary satisfaction nahi mil rahi thi. Now, for somebody to be in this industry, jahan itna competition and people think like, chalo kar leta hu, ye baad mein mil jayega. That's like quite an independent and tough stand to take, yeah, and it's also risky. हाँ, I think it is risky, but वही, I think हम इससे पहले वाले सवाल पे ही वापस जाते हैं कि मेरा एक बड़ा सिंपल सा वो है कि कॉलेज के टाइम पे when I was joining this field, then I started doing theater in Kirodi Medical College. You must be aware of Players. जी. So I was a part of Players. जी. तो जब वहां पे मैं आया था, हम लोग तो दिन रात काम करने वाले लोग हैं कि सुबह अपना 9 बजे अटेंडेंस हमारी एक्चुअली हमारे ऑडिटोरियम में लगती थी, और फिर रात को 2 बजे तक, 4 बजे तक आप कब तक काम कर रहे हो, देयर इज नो लिमिट टू इट. तो सुबह 9 बजे आना है. तो उस वक्त पे घर वाले चाह रहे थे कि नहीं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो कुछ कायदे का काम कर ले, कुछ जो एक रेगुलर सेफ सिक्योर लाइफ होती है उसमें चला जाए. बट माय पॉइंट इज ऑलवेज कि यार उस टाइम पे माँ बाप के इतने कंसर्न से लड़ाई करी थी, उनसे बोला था कि नहीं मुझे तो यही करना है. किस लिए करी थी? क्योंकि पैशन था, बिकॉज इट वाज समथिंग के जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे अंदर से सेटिस्फाइड फील करवाता था. तो अब मैं उस ट्रैप में आके अगर मैं खुद को फंसा लूं कि नहीं नहीं यार, इट इज अ सिक्योर लाइफ, इट इज अ सेटल्ड लाइफ, क्यों मैं इसमें कुछ इंस्टिंक्टिव डिसीजन लूं, तो आई विल बी डिसरिस्पेक्टफुल टू माय फादर एंड मदर. क्योंकि मैंने तब उनसे लड़ाई करी थी जब वो सेम मुझसे बात करने को कह रहे थे, बट दे रिस्पेक्टेड माय आइडिया, माय ओपिनियन के हाँ ठीक है, तुम्हें अगर लगता है, इतना पैशनेटली लगता है, देन गो अहेड विद दिस करियर. तो अब आई हैव टू एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, अदरवाइज आई कैनॉट कीप ऑन वर्किंग हियर. तो अगर मुझे मजा नहीं आ रहा, तो कई लोगों ने ये भी बोला कि यार अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, क्यों परेशान है. मैंने यार पैसा कमाना होता कुछ और करते, ऐसे कोई परेशानी नहीं थी मुझे, मैं MBA क्लियर कर लेता, MBA करता, नौकरी कर रहा होता, कहीं तरक्की शायद कर लेते. लेकिन मुझे यार सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है. वो अच्छी बात है, पैसा कमाना नहीं लगता, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आई थिंक इट इज मोर अबाउट द पैशन एंड सेटिस्फैक्शन. रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, मुझे हमेशा लगता है, बहुत पसंद है मुझे सोना. But this year has been fabulous for you, yeah. Simple Murder dekh liya, Chhalang dekh li, Tandav aa rahi hai. And also, do you feel we are also seeing a change because there's no longer a hero and then the rest are the characters who are there in the wings waiting, apne scene mein aayenge fir exit honge. You think now they're all characters? Because even in this, like Saif Ali Khan was Bollywood, he's also just a character.
Samar Pratap is a character. Shiva is a character. Do you think that's now happening across? It's no longer about the hero. It's all about the characters. Or do you think we have a long way to go? I would say we still have a long way to go. जी, honestly. जी, जी. मैं मतलब मैं शायद थोड़ा वैसा आदमी हूँ, बहुत जल्दी खुश होता नहीं हूँ. मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ. मुझे लगता है कि लेट्स ऑब्जर्व इट मोर, बिकॉज जी. एक देखिए पैटर्न तो अभी भी बन रहा है. दो, हाँ मतलब मैं आपके पहली स्टेटमेंट पे पहले अग्री कर लूं, आपको ये ना लगे कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, कि हाँ अब एक्टिंग की बात होने लगी, अब कैरेक्टर्स की बात होने लगी. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ a good thing for directors also, and it has become easier for directors. अब कोई time limit नहीं है, so they can invest more on some so called secondary character also. मतलब primary तो छोड़ ही दीजिए आप, secondary पे भी अगर आपको लगता है कि यार रुक जाओ इसमें ना 3 सेकंड का एक होल्ड दे देता हूँ इसके चेहरे पे, it won't harm you. आपका एपिसोड अगर 35 मिनट का 37 मिनट्स बन जाएगा या 50 मिनट का 55 मिनट बन जाएगा, nobody would mind. nobody, कोई ऐसा नहीं करता कि वो देख के आदमी बोलता है अरे यार ये तो 55 मिनट का एपिसोड है, नहीं देखूंगा, बाकी तो 52 मिनट के थे. सो यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन योर कैरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स को भी फ्रीडम मिली है, उसकी वजह से एक्टर्स को अपना काम करने का मौका मिल रहा है. एक्टर्स जो हैं वो जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं उस तरह से कर रहे हैं, बट आई वुड से स्टिल कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा फंस रहे हैं. नए स्टार्स बन रहे हैं डेफिनेटली, पर स्टार्स बन रहे हैं. तो यानी कि इतना आसान अभी नहीं है. इट विल बी अ लॉन्ग वे. और हम अभी भी, हमारे लोग जो हैं वो उसको सेलिब्रेट उसी तरह से कर रहे हैं. तो वैसी वाली बात है कि यार फिल्म में भी हर साल तो कोई एक बड़ा स्टार आ ही रहा था, या कोई एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस हो ही रही थी. वेब पे ज्यादा हो रही हैं, बट वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ देम, व्हिच वी शुड. मतलब मैं भी क्योंकि उसका हिस्सा हूं तो अच्छा ही लगता है अगर आप सेलिब्रेट होते हैं. मैंने फिल्म वाला भी सेलिब्रेशन देखा था, मैं अब ओटीटी वाला सेलिब्रेशन भी देख रहा हूँ. आई एम लकी, बट आई वुड से दैट आई एम लकी. दोबारा मैं रिपीट करूंगा, बिकॉज कई लोग हैं जिन जो अच्छी सीरीज के बैठ. जी. या आई थिंक दैट इज देयर. एक बात बताओ, आई नो एन एक्टर जो भी प्लेटफॉर्म हो, थिएटर आपने किया, आपने फिल्में की है, वेब सीरीज कर रहे हैं, मगर क्रिएटिवली सैटिस्फाइंग ये दौर लग रहा है ओटीटी, बिकॉज यू नो you get a longer arc. There are mini series like Tandav also is like a mini film being made. You can play anything you want to. You're not restricted by that box office. नहीं फिल्मों में ये है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के अपने जो लोचे होते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए. Do you think you're enjoying this phase and OTT might upend the star system also? Definitely. I'm loving OTT space. I'm actually liking it more than a few films right now. मतलब कुछ फिल्म्स का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही कमाल था, तो I won't say that, but it is changing. मतलब ये काफी अच्छी एक मैरिज सी बन गई है बिटवीन थिएटर एंड फिल्म्स. तो वो उस तरह का प्रोजेक्शन और उस तरह की चीजें भी नहीं है. थोड़ा सा ज्यादा वक्त आपको सीन बनाने में मिलता है, और हाँ तो मुझे ज्यादा मजा आ रहा है अभी वेब करते हुए. एंड वही कैरेक्टर आर्क मिलता है आपको, एक लंबा वक्त है. वो 2 घंटे में आपको कैरेक्टर को 15 मिनट मिल रहे हैं, आधा घंटा मिल गया बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि 1.5 घंटा हीरो और हीरोइन का होगा. बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको अगर आधा घंटा भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है. ये वेब में, ये ओटीटी में ये दिक्कत नहीं है जी. तो आपका ठीक है, आपने उस आदमी को कितना भी टाइम दे दीजिए, आपको एक पॉइंट के बाद दूसरा ट्रैक दिखाना पड़ेगा. यू विल नीड टू ऐड समथिंग मोर टू इट, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम बोरिंग और लोग छोड़ देंगे. तो वो नीड जब बन रही है, नेसेसिटी जब बन रही है, तब आई थिंक क्रिएटिवली ज्यादा बेटर चीजें निकल के आ रही हैं. तो हमें मजा आ रहा है, और लकीली हम भी अब इस स्पेस में आने लग गए, तो अच्छा ही है, अच्छा लगता है जब आपको ऑथर बैक कैरेक्टर मिले तो. Absolutely. So तांडव में सबसे आपने क्या एंजॉय किया? एंड ऑल्सो यू नो एज वी आर सीइंग आजकल हमारे पास ट्विटर कचहरी है, कोर्ट भी ट्विटर और व्हाट्सएप पे होता है, पॉलिटिक्स भी सोशल मीडिया पे खेली जा रही है. सो रील और रियल पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? यार रियल के बारे में तो मैं बोलता ही रहता हूँ, वो तो आप मतलब हर आदमी को अवेलेबल है बिल्कुल एक बटन दबाने पे. इसमें जो है और आपको किसी ने ये भी कहा था सर आप अच्छा रोल करते हो मगर मैं आपकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता. somebody actually even said that to you, right? हाँ, ये तो काफी आता है, ये तो काफी रेगुलरली आता है कि एक्टर बहुत अच्छे हो उसी पे ध्यान दो ना. ये
तो मैंने कहा यार ठीक है ना, इट्स फाइन, इट्स ओके, तो इतना परेशान मत हो। और इसमें आई थिंक द थिंग आई एंजॉयड द मोस्ट वाज, अगेन वही मैं पहले हमारा जो फर्स्ट सवाल था, आई थिंक इट इज कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही जी, है, जी, फुल सर्कल हम वापस आ गए यूनिवर्सिटी। और मैं अभी और एक्साइटेड हूं कि भाई ये जो था ये निकल के क्या आया होगा, ये यूनिवर्स, मतलब मैं कैसे बोलूं यार, नॉर्थ कैंपस का प्यार, आई एम श्योर यू आल्सो नो कि वो आप भूल ही नहीं सकते हो, वो इतना करीब हो जाता है, इट बिकम्स योर लाइफ ओनली। एंड आई वाज जी, सो लकी कि मैं दोबारा इतने साल बाद आई गॉट टू रिविजिट इट एंड प्लेइंग अ स्टूडेंट ओनली देयर, मतलब इट इज अ फिक्शनल यूनिवर्सिटी इन आर वो, बट शूट हमने डीयू में किया, तो उफ, तो वो जो थे वो दिन, वो कमाल थे, ड्रीमी डेज थे वो मेरी लाइफ के, मैं ये बोलूंगा जब शूट कर रहे थे हम तांडव का। जी, जी, जी। और आखिरकार ये बोलना चाहती हूँ, हम लोग बहुत बारी चाहते हैं कि एक्टर्स को बोलना चाहिए। आपको पता है न्यूज़ चैनल में हर मुद्दा होता है, इवन इफ यू आर नॉट रिलेटेड टू इट, दे वांट अ वॉइस। बट यू आल्सो अस सिटीजंस, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज फॉर एक्टर्स टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड रेज देयर वॉइस, और डू यू थिंक दे शुड बैक ऑफ? बिकॉज ये बहुत लोगों में होता है कि आई लाइक टू कीप माई पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम the public space. There's some like you, आई थिंक like it's okay, I'm a citizen, I'll say it. देखिए वैसे तो सबका अपना ओपिनियन है कि भाई किसको क्या करना है, किसको कैसे करना है, बट मैं ये बोलूंगा कि इसको ना हम एक्टर स्पेसिफिक करके कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक्टर भी कोई एक आम आदमी जैसा ही होता है, क्यों उसे इतना अलग कुछ बना देना है, या उसे एकदम ऐसा छुई मुई का पौधा बचपन में एकदम हुआ करता था, वो क्यों बना देते हैं कि अरे ऐसा मत कर। आराम से यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी यहीं रह रहा हूँ, आप भी दिल्ली में बैठी, मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ, क्या अभी क्या फर्क है? तो सही में। जितने जितना आपको कुछ करना चाहिए उतना ही मुझे कुछ करना चाहिए, उतना ही किसी और को भी करना चाहिए। मैं अगर मानने लग जी, जाऊं कि एक सेकंड मैं तो एक्टर हूँ, तो मैं तो कुछ बहुत महान हूँ या पता नहीं क्या हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। या अगर कोई और मुझे ये बनाने लगे कि अरे आप तो एक्टर हैं, आप क्या करेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। आई थिंक वी शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमंस ओनली, एंड वी शुड रिएक्ट एज ह्यूमंस। true. And जाते जाते your favorite student politics पे कौन सी फिल्म है that you really have liked? अभी एकदम से मुझे तो ऐसे याद नहीं आ रही, पर युवा आई रियली लव्ड। युवा वाज वन फिल्म, क्योंकि हम तभी आई थिंक आई जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम माय कॉलेज, आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, और उसके बाद ही आई थी, तो हम पागल हो गए थे कि उफ, क्या ये क्या बनाया है, दिस इज मैजिकल। तो आई थिंक वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी गुड फिल्म। अभी भी एकदम टॉप ऑफ माय हेड वही है, तो मैं एकदम से वही बोल दूं। Thank you so much. So what more other than Tandav in 2021? अभी तो यही है, अभी बाकी जी, चीजें तो चल रही हैं। अब 20 में क्या 21 में आएगा, क्या 22 में आएगा, ये एक ओटीटी का हमें नहीं पता रहता बिल्कुल। आई डोंट नो, बट thank you so much. राइट नाउ तांडव इज देयर। Thank you so much, and keep inspiring. And I actually like your politics, whether it's even in the movies. Like, I will not compromise on my ideals. You know, need more people like you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. Bye bye.